बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हनीफ है एंड आई एम वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट एज एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर। आई एम टीचिंग anatomy since 1998. So I am in this department for the last almost 23 years, except 2 years when I was in Lahore. तो बच्चों, हमारा जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो तो इंग्लिश डेफिनेटली है, लेकिन मैं बीच में कुछ उर्दू भी बोलूँगा, तो फॉरेनर स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी सी माजरत के साथ इंशाल्लाह बीच में इंग्लिश उर्दू सब वक्त चलेगा। मकसद आपको समझाना है, इसलिए कभी कभी मैं एक वो स्पेसिफिक जो है इंग्लिश वे ऑफ टीचिंग जो लैंग्वेज के तौर पे है उससे हट के उर्दू में भी चलूँगा। तो उससे ये है कि लेक्चर थोड़ा सा बात का लंबा हो जाता है, क्योंकि आप बीच में इंग्लिश भी बोल रहे होते हैं, उर्दू भी बोल रहे होते हैं, आपको समझा भी रहे होते हैं। मान लीजिए आज पहला हमारा लेक्चर है और ये इंट्रोडक्टरी टाइप ऑफ लेक्चर है जिसमें ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं। तो बच्चा, मैं आपको एनाटॉमी की वो ब्रांच पढ़ाऊंगा जो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी is derived from a Greek word embryon, which means unborn. So the branch of the biology which deals with the study of the formation and the development of the human beings. आप इतना ही कर लें, हमारे तो ह्यूमन बीइंग है, कोई भी हो सकता है, it may be any organism, but we will be specific to the human beings. So the study of the formation and the development of the embryo, which is the initial phase in the development of the human being. During the early phase it is called the embryo, and later on it is called fetus. So the development of the embryo from the fertilization to the birth of a particular organism is called embryology. And from this definition it is almost clear that from fertilization to the birth, this means we will discuss the development before birth. That is why it is called prenatal. So embryology is actually the study. Then what is developmental anatomy? The study of the formation of the different structure or the growth or the maturation which continues even after birth. So, and that study which is not only limited to the unborn but also after birth, the processes which occurs, that is called the developmental anatomy. So the study of the unborn as well as the born, in which we study the structural changes from fertilization to the adulthood, that is called the developmental anatomy. So before birth, that is intrauterine life, and after birth, if we study the process in both phases, then it is called the developmental anatomy. Then what is, हम अभी डेवलपमेंट कह रहे हैं, डेवलपमेंट, तो व्हाट इज मोर स्पेसिफिक? डेवलपमेंट क्या खुद क्या है? These are actually the progressive changes which occurs during the formation of a multicellular organism from a single cell. जो स्टडी है, जो चेंजेस की स्टडी है, और वो जो चेंजेस हैं उनको हम डेवलपमेंट कहते हैं। व्हाट इज ऑन्टोजेनी? द हिस्ट्री, द कंप्लीट डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एन organism is called
ontogeny. Then we calculate the developing age of the developing human during the intrauterine life, and we take it from the first day of the last normal menstrual period. We calculate it, and that is called the gestational age. For example, when a female comes to a gynecologist when she knows that she has become pregnant, and she visits some gynecologist, the gynecologist first of all asks her, what is your फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड? जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पिछले माह का था या 2 माह पहले का था, जो भी हिस्ट्री जितनी भी हो, वो किस डेट को आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चे स्टार्ट होता है व्हेन देयर इज ए स्टार्ट ऑफ द vaginal bleed during the menstrual cycle. That day when the bleeding start is called the first day of the menstrual cycle. And from that day, the lay doctor, the gynecologist, that calculates that this is the 5th week, 7th week, 8th week have passed. So she presumed that this is the age of the developing baby. So age of the embryo from the presumed first day of the last normal menstrual period is called the gestational age. And if we calculate the age of the developing human from the supposed day of the fertilization, then it is called the fertilization age, and it is usually 2 weeks shorter than the gestational age. बच्चों वो इसलिए कि फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नॉर्मली हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को की लेंथ को 28 डेज लेते हैं. इट मे बी वेरी, इट मे बी 22, 24, 26 आर, इट मे बी लॉन्ग 30 डेज का, 32 डेज का, डिफरेंट फीमेल्स में डिफरेंट है, लेकिन यूजुअली एवरेज 28 डेज का है. और फर्टिलाइजेशन जो होती है वो यूजुअली in the middle of the menstrual cycle, that is the 14th or the 15th day या 13th day. So it is the middle of the menstrual cycle जब fertilization होती है. So अगर हमें last normal menstrual period का first day अगर उस patient को याद है, pregnant female को याद है, तो हम वहीं से suppose कर लेते हैं कि ये fertilization age उससे 2 weeks shorter है. और normal span of the intrauterine life in case of human is the 38 weeks if we calculate it from the day of fertilization, and if we calculate it from the last normal menstrual period, then it is the 40 weeks duration. Another way to divide that period is into 3 equal periods. The first 3 months intrauterine life development is called the first trimester, then the next 3 months are called the second trimester, and the final 3 months they are called that is called the third trimester. तो ये भी एक तरीका है कि एक प्रेगनेंसी के पूरे स्पैन को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो. अच्छा, डेवलपमेंटल पीरियड जो है, मैंने आपको बताया था डेवलपमेंटल एनाटॉमी स्टडी है बिफोर एंड आफ्टर बर्थ. सो डेवलपमेंटल पीरियड को भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक बिफोर बर्थ का और एक आफ्टर बर्थ था. बिफोर बर्थ वाले को वी कॉल इट एज ए प्री नेटल पीरियड, एंड द पीरियड विच इज आफ्टर बर्थ इट इज कॉल्ड द पोस्ट नेटल पीरियड. और प्री नेटल को हमने फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया ड्यूरेशन के रेफरेंस से. अप टू द 8th वीक इट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक पीरियड. 8th week यानी कि मीन फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन अप टू द एंड ऑफ द 8th week ऑफ द डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक पीरियड. और जो फिर 8th के एंड यानी कि 9th week के स्टार्ट से लेकर बर्थ तक का डेवलपमेंटल पीरियड है इंट्रायूटेराइन लाइफ में, उसको हम फीटल पीरियड कहते हैं.
अब आ जाता है कि ये इस दौरान ह्यूमन बीइंग को हमने भी मुख्तलिफ नेम दे दिए हैं। बच्चे जो अर्लीस्ट डेज का ह्यूमन है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और वो कहां से, फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन अप टू द एंड ऑफ द 8th वीक। सो द डेवलपिंग ह्यूमन ड्यूरिंग इट्स अर्ली स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। जो फर्स्ट 8 वीक्स के दरमियान डेवलपिंग ह्यूमन है इंट्रायूटरन लाइफ में, हम जब भी डिस्कस करेंगे तो हम उसको एम्ब्रियो कहेंगे। एम्ब्रियो स्टेज में एम्ब्रियो की ये डेवलपमेंट हो रही है, तो इस तरह इस रेफरेंस से बात करेंगे। और आफ्टर द 8th वीक यानी कि स्टार्ट ऑफ द 9th वीक से बर्थ तक जो डेवलपिंग ह्यूमन है वी लेबल इट एज ए fetus. So the developing human after the embryonic stage, that is from the start of the 9th week up till birth, is called the fetus. अब बच्चे जो डेवलपिंग ह्यूमन है उसको तो हमने नाम दे दिया, एम्ब्रियो दे दिया, फीटस दे दिया। अब इस डेवलपिंग ह्यूमन के इर्द गिर्द भी कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं एज द रिजल्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, एज द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन और फिर आगे फर्दर ग्रोथ से जो इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स बनती हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है, प्लेसेंटा बनता है। तो जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसी के जो बने हैं ड्यू टू दी प्रेगनेंसी, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग प्लस द डेवलपिंग ह्यूमन, चाहे वो एम्ब्रियो है चाहे वो फीटस है, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड कंसेप्टस। सो एम्ब्रियो और फीटस, यहां मुझे फीटस भी लिखना चाहिए था, सॉरी। तो एम्ब्रियो एंड इट्स सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स, जिनको कलेक्टिवली एडिनेक्सा कहते हैं, एडिनेक्सा, तो वो कलेक्टिवली इज कॉल्ड कंसेप्टस। सो एम्ब्रियो और द फीटस एंड इट्स सराउंडिंग एडिनेक्सा इज कॉल्ड कंसेप्ट। अब ह्यूमन बच्चे हमने बिफोर बर्थ के तो नाम दे दिए, एम्ब्रियो एंड द फीटस। आफ्टर बर्थ भी इंसान की लाइफ के साथ उसके कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस के हिसाब से हम उनको नाम दिए हुए हैं। ए न्यू बॉर्न एजड लेस देन 1 मंथ, डे 1 से लेके एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ उसकी लाइफ तक, उसको हम न्यू नेट कहते हैं। सो न्यू बॉर्न एज्ड 1 मंथ और द यंगर इज कॉल्ड न्यू बॉर्न aged 1 month or the younger is called the neonate। और इसी ह्यूमन को बच्चे फ्रॉम द डे 1 अप टू द 1 year इन्फेंट भी कहते हैं, और इन्फेंट में से एक्चुअली पीरियड जो फर्स्ट मंथ का उसको हम न्यूनेट कहते हैं। सो द न्यू बॉर्न एज अप टू 1 year ऑफ एज इज कॉल्ड द इन्फेंट। अब इंसान की लाइफ स्पाइन में जो ऐसा पीरियड जब इंसान फ्रॉम फर्स्ट ईयर के एंड से लेकर प्यूबर्टी तक का है उसको हम चाइल्डहुड कहते हैं। आपने नाम आम सुना होगा चाइल्डहुड। सो पीरियड फ्रॉम 1 year अप टिल प्यूबर्टी इज कॉल्ड द चाइल्डहुड। और प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी इज द स्टेज इन द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन when there is a appearance of the secondary sex characters, and due to those developed characters the human being becomes capable of the sexual reproduction, यानी कि वो गैमीट्स बनाना शुरू करती है उसने। और फीमेल में गैमीट्स जब बनते हैं तो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको हम मेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, and that start of the menstrual cycle is called menarche, and in female it usually occurs between the age of the 12 to 15th year of life, or in case of male we label it as a puberty when there is a formation of the mature sperm starts in the testes of the male, and that is occur usually between 13 to 16 years of the life. Adolescence. Adolescence is the period during which there is a rapid physical and the sexual maturation of the human being.
and due to that the person got the ability to reproduce. वो काबिल हो गया है कि अपने जैसा आगे ह्यूमन बनाने में प्रोसेस में हिस्सा ले सके, और डेट यूजुअली टेक्स प्लेस बिटवीन 11 to 19 years. अब आप इसको कहोगे कि प्यूबर्टी और इसमें क्या फर्क है, उसमें सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स तक हम स्पेसिफिक थे, यहां हमने रैपिड फिजिकल भी कहा है, फिजिकल ग्रोथ भी पूरी उसकी हो गई है, लुक्स लाइक ए अडल्ट. सो अडल्टहुड और स्पेसिफिक हो जाता है कि उसमें बोन्स की लेंथ यूजुअली वो मैक्सिमम अटेन हो जाती है, जब अटेन हो जाए तो उसको हम कहते हैं अडल्टहुड हो गया. सो अटेनमेंट ऑफ द फुल ग्रोथ एंड द मैच्योरिटी इज कॉल्ड अडल्टहुड एंड इट इज मार्क्ड बाय द कंप्लीशन ऑफ द ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन्स. मीन्स कि बोन्स की लेंथ अब कंप्लीट हो गई है, जितनी ग्रो करनी थी बोन्स ग्रो कर गई है. दैट यूजुअली अकर्स बिटवीन द एज ऑफ द 18 to 21 years. 18 तक हो जाती है, ये मार्जिन हमने रख दिया, एक रेशियो दे दिया, एक सॉरी रेफरेंस दे दिया कि यहां से यहां तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है. फिर आप एम्ब्रियोलॉजी में आप लफ्ज सुनोगे, दिस इज द प्राइमोर्डिया ऑफ दैट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. प्राइमोर्डिया या प्राइमोडियम ये क्या है? द बिगिनिंग आर द फर्स्ट डिस्क्रिमिनेबल इंडिकेटर of a developing organ or a structure is called the primordia. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे, ये एक अपर लिम्ब का एक छोटी सी अपेंडिकुलर ग्रोथ अपीयर होती है ऑन द साइड ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो in the region of the developing cervical and the thoracic region, and in case of the lower limb it is present in the region of the developing lumbosacral region. That small swelling which later on an appendicular shape है और फिर further growth हो के ये आगे जाके पूरे का पूरा limb बन जाता है. So that initial small swelling and then converting into appendicular growth is the primordia of the limb development. अब बच्चे नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ साथ आपने देखा होगा कभी एबनॉर्मल बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, किसी लिहाज से उनमें एबनॉर्मेलिटी होती है, एक्सटर्नली भी या इंटरनल स्ट्रक्चर्स में भी, और उसकी स्टडी को हम टेराटोलॉजी कहते हैं. द स्टडी ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिकल रीजन्स एंड द कॉजेज फॉर द बर्थ डिफेक्ट इज कॉल्ड टेराटोलॉजी. ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन बच्चों क्रोमोसोम्स की. The chromosomes are the thread-like packed and organized chromatin consisting of DNA and proteins. और आपको बहुत अच्छी तरह एफएससी में आप पढ़ चुके हो कि एक क्रोमोसोम consist of a short arm and a long arm. Both are joined at a point which is called the centromere. और बच्चे जब भी कोई क्रोमोसोम एंटर होने चाहता है, at its point when it enters into the mitosis process, before entering into that process it replicates its DNA. replicates करता है तो फिर इसके 1 से 2 पी आर्म और इसी तरह 1 से 2 क्यू आर्म बन जाते हैं, और 1 पी और 1 क्यू आर्म को एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को क्रोमेटेड कहते हैं. और इस वक्त फिर हम अगर ये एक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का तो हम क्या कहेंगे, इट इज डबल स्ट्रैंडेड या इट कंसिस्ट ऑफ 2 chromatids. One chromatid consists of 1 P arm and the 1 Q arm. The other one also 1 P arm and 1 Q arm. So इस वक्त जो हमें क्रोमोसोम नजर आ रहा है, इट इज ए डबल क्रोमेटेड स्ट्रक्चर है, और ये जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द माइटोसिस होता है. जब आफ्टर द माइटोसिस रिजल्टिंग सेल होगा, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे दे विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द सिंगल क्रोमेटेड, यानी कि उनमें
सिंगल पी आर्म और सिंगल क्यू आर्म वाला क्रोमोसोम। अब बच्चे क्रोमोसोम्स को हम उनके फंक्शंस के हिसाब से क्या लें, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। नॉर्मल जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने वाले सारे क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं, एंड द वन which regulates the activities regarding the sex, और सेक्स से आगे उसके जितने सेकेंडरी सेक्स करैक्टर हैं उनको कंट्रोल करने वाले का उन क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इन केस ऑफ ह्यूमन आपको पता है हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और हम उनको 23 पेयर्स में कर देते हैं, क्योंकि जो 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं वो हर दो क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं, तो उसको हम पेयर कह देते हैं। सो देयर आर 22 पेयर्स of the autosomes and one pair of the sex chromosome is there. अब आपको मैंने एक सेंट्रोमियर का पॉइंट बताया, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जहां पे दोनों आर्म्स एक क्रोमोसोम के जुड़े होते हैं, they are attached. The centromere is the protein structure or the point where the P arm and the Q arm is attached to one another. तो ये सेंट्रोमियर की लोकेशन पे डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर वी आल्सो लेबल द क्रोमोसोम्स, उनकी हम डिवाइड कर देते, क्लासिफाई कर देते हैं। व्हेन ऑलमोस्ट द सेंट्रोमियर इज एट सच ए पॉइंट दैट द बोथ आर्म्स आर ऑलमोस्ट इन इक्वल साइज, टी आर्म इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द Q arm, then that specific type of the chromosome is called the metacentric chromosomes. और ये इनको हम विजुलाइज करते हैं क्रोमोसोम पेयर नंबर 1, पेयर 3, पेयर 16, पेयर 19 एंड पेयर 20 में। And when the centromere is located just slightly away from the center, meaning there is a one arm is shorter and the other arm is longer. क्लियर डिफरेंस होगा दोनों में। शॉर्ट आर्म वही मैंने कहा पी आर्म कहलाता है जैसे कि आपको पता है, और लॉन्ग आर्म क्यू आर्म कहलाता है। तो इसको हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं, और ये हम देखते हैं क्रोमोसोम नंबर 4 और क्रोमोसोम नंबर 12 में। एक्रोसेंट्रिक, जब दोनों में डिफरेंस बड़ा क्लियर हो, वन आर्म इज वेरी स्मॉल एंड द अदर इज कंपैरेटिवली लार्ज, एंड दैट इज कॉल्ड द एक्रोसेंट्रिक। और ये हम देखते हैं क्रोमोसोम पेयर नंबर 13, 15, 21 और 22 में। और ये जो टीलोसेंट्रिक है ये ह्यूमन में नहीं होता है, इट इज इन द माइस, और इसमें ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल साइज, ना होने के बराबर नेग्लिजिबल पी आर्म होता है। तो ऑलमोस्ट ये एंड्स पे दो क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। अच्छा बच्चा, प्लेसिंग करनी जब क्रोमोसोम्स की है, और प्लेसिंग के लिए हमने जो क्राइटेरिया है दैट इज द लेंथ, दैट इज द साइज ऑफ द क्रोमोसोम। द लार्जेस्ट वन इज लेबल्ड एज द क्रोमोसोम नंबर 1, और मैंने जैसे आपको कहा था ये पेयर की शक्ल में होते हैं। सो नंबर 1 के इसका मतलब 2 क्रोमोसोम होंगे, वो पेयर की शक्ल में है तो 2 क्रोमोसोम होंगे। इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 2 उससे जरा छोटा है, इट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द फर्स्ट वन, एंड वी गो ऑन डिक्रीजिंग द साइज एंड लेबलिंग इट एज नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 अप टू द 22. So chromosome number 22 is the smallest one. सेक्स क्रोमोसोम में हम ये क्राइटेरिया नहीं लेते, वो एक अदर क्राइटेरिया, वो अपने फंक्शन के लिहाज से, अपनी शेप के लिहाज से भी थोड़ा सा। तो फीमेल में दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम आपको पता है एक्स टाइप के होते हैं, और इन केस ऑफ मेल इट इज एन एक्स एंड। अब क्रोमेटिन की डेफिनेशन, व्हाट इज क्रोमेटिन? इट इज ए जेनेटिक मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए एंड दी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन्स। अब homologous chromosome are 2 chromosomes that are same, exactly like. For example, chromosome number 1 in a diploid cell. Diploid means cell
जो उसमें नॉर्मल सेल्स की, ह्यूमन में क्या 46, जिसके अंदर 46 हो, उसको हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं। तो नंबर 1 में मैं कहता पेयर की शक्ल में होगा। इसी तरह इट में भी आप किसी को भी पेयर को ले सकते हो, नंबर 6 को भी ले सकते हो, नंबर 17 को ले लो, एनी हाउ। Then what is gene? Gene is a small segment of the DNA that contains the necessary information to construct a protein or a part of the protein. वो उतना स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द डीएनए है जो एक प्रोटीन को बनाने में या एक प्रोटीन के इवन पार्ट को बनाने में कंट्रोल कर रहा, उतना स्पेसिफिक, उतना छोटा सा पोर्शन, उसको हम एक क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए का है जो पोर्शन, उसको हम जीन कहते हैं। क्रोमेटिड का मैंने पहले आपको जिक्र कर दिया। आइदर ऑफ द टू स्टैंड्स फॉर्म, डबल क्रोमेटिड होता है जब एंटर होने लगता है इनटू द माइटोसिस प्रोसेस। जस्ट बिफोर एंटरिंग इट कंसिस्ट ऑफ द 2 p arms and the 2 q arms, or 1 p arm and 1 q arm collectively is called a chromatid. Either of the two stand forms when a chromosome duplicates itself during the cell division is called chromatid. अब बच्चे प्लॉइडी, प्लॉइडी है, it refers to the number of the sets of the chromosome. If a cell contains 23 chromosomes, वो पेयर्स में नहीं है, then it is called a haploid cell. ये ह्यूमन की बात हो रही है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो इसी हिसाब से हमने नाम करती है। If we multiply it by 2, then the resulting cell will contain the 46 chromosome, and that cell is called the diploid cell. That cell is called the diploid cell. If we multiply the 23 by 3, the resulting cell will contain the 69 chromosome. That will call the triploid. वाइबल नहीं होता डेफिनेटली, लेकिन अब चूंकि ये एग्जैक्ट मल्टीपल है ऑफ द हैप्लॉइड, then it is called euploid. And when a resulting cell contains the chromosomes which are, that number is not the exact multiple of the haploid, then it is called aneuploid. ये abnormal condition है ये definitely. So aneuploid refers to any chromosomal number which is not euploid, mean which is not exact मल्टीपल ऑफ दी हैप्लॉइड, यानी कि 46 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 46 हम नॉर्मल है, 46 की रेफरेंस से लेते हैं। अगर उसके अंदर एक सेल के अंदर 47 क्रोमोसोम्स है, मल्टीपल नहीं है, 46 में एक 1 प्लस हुआ है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई, अब ये ऐड हुआ है, हो रही है या माइनस हो रहा होगा, तो तब हम उसको क्या कहेंगे, एक फर्दर एक ऐड हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको हम ट्राई कह दिया। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ट्राइसोमी। तो ओवरऑल कंडीशन क्या है, इसको एनयूप्लॉइड कहेंगे। तो और ये एग्जांपल ट्राइसोमी 21 मीन कि क्रोमोसोम नंबर 21 एक्स्ट्रा है, वो पेयर की शक्ल में नहीं है, ट्रिपलेट की शक्ल में है। दिस मीन उसको हम लेबल करेंगे ऐसे सेल को ऐसे 47XY। दिस मीन्स के नो प्रॉब्लम विद दी सेक्स क्रोमोसोम। तो एक्स्ट्रा कौन सा है, उसको एक्स्ट्रा की निशानी दे दी हमने कि वो कौन सा है 21, एंड दैट इज लेबलिंग फॉर द डाउन सिंड्रोम। डियर स्टूडेंट्स, वी स्टॉप आवर लेक्चर एट दिस पॉइंट। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी अपलोड करूंगा। अब आपका एम्ब्रियोलॉजी का समझ ले सेक्शन शुरू हो गया है, तो ये चलता जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप साथ साथ पढ़ते रहें। किताबें मैंने आपसे शायद पहले भी कहीं जिक्र हो गया है या बता दी, अपलोड की थी कि एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपकी एक तो लैंगमैन की किताब है, दूसरी जो बुक रिकमेंडेड है दैट इज दी डेवलपिंग ह्यूमन क्लिनिकली ओरिएंटेड एम्ब्रियोलॉजी बाय कीथ एल्मोर।
उसका 11th एडिशन आ चुका है, और लैगमैन का भी कुछ देख लें, मेरा शायद मुझे उसका एडिशन का लेटेस्ट का नंबर नहीं याद। ये दो किताबें आपको दोनों में से जो अच्छी लगे या दोनों मिला के पढ़ना चाहें, हर स्टूडेंट की अपनी मर्जी होती है, आप प्लीज़ पढ़ें, प्लीज़ इसको साथ साथ पढ़ें, चलता रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी फर्स्ट ईयर में जनरल एम्ब्रायोलॉजी पूरी होगी और कुछ स्पेशल एम्ब्रायोलॉजी के चैप्टर्स भी आपके इंक्लूडेड होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। ये बच्चों, अब ये पैंडेमिक की वजह से ये वे ऑफ टीचिंग अपनाया गया है कि आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाए। डेफिनेटली जो आप फिजिकली यहाँ आके पढ़ते उसका ज़रा और सिस्टम होना था, उसकी शायद अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से बेहतर होती है, लेकिन ये एक मजबूरी है जिसकी वजह से हमने ये वे अपनाया हुआ है। तो मैंने इस पिछली दफ़ा मैंने सारा बिल्कुल इंग्लिश में किया था, जो भी थोड़ा बहुत ऑनलाइन किया था, मेजॉरिटी तब भी मैंने कोशिश की थी कि बच्चे जब मेरे पास आ गए थे तब मैंने पढ़ाया था। अब ऑनलाइन का भी तो कुछ समझ नहीं आ रही कि कब तक ये पेंडेमिक चलेगा, अल्लाह जानता है। तो मजबूरी है, पहले से शुरू कर लिया है। तो एनी हाउ बच्चों, तो इसका भी कुछ वे आउट निकालेंगे कि बच्चों को जो क्वेरीज रह जाएंगी, कुछ समझ ना आएंगे, कुछ जूम का किसी वक्त बना लेंगे, लेकिन स्पेसिफिक पोर्शन एक कंप्लीट करने के बाद ही, हर लेक्चर के बाद का नहीं सिस्टम रखेंगे। इस तरह फिर ये प्रोसेस जो है ना बड़ा स्लो अप हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं जल्दी दूसरा लेक्चर अपलोड करूंगा। अल्लाह हाफिज।